हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे सीबीएसई की क्लास 9 की इंग्लिश की द फन दे हैड की समरी। द फन दे हैड वाज रिटेन बाय आइजैक एसिमोव। द स्टोरी इज सेट इन द फ्यूचर when books and schools are conducted digitally through virtual classrooms. These classes are taken by a mechanical teacher robot instead of a human class teacher. The story starts with two children named Margie and Tommy. They live in a world where computers dominate each and every sphere of life, and children attend virtual classes. With the onset of virtual schools, the concept of books and classrooms has transformed considerably from the olden days. द फन थिएट को आइजैक एसिमोव ने लिखा है। कहानी भविष्य में सेट की गई है, जब किताबें और स्कूल वर्चुअल कक्षाओं के माध्यम से डिजिटल रूप से संचालित किए जाते हैं। ये क्लासेज मानव कक्षा शिक्षक के बजाय एक रोबोट द्वारा ली जाती है। कहानी मार्गी और टॉमी नाम के दो बच्चों से शुरू होती है। वे एक ऐसे दुनिया में रहते हैं जहाँ कंप्यूटर जीवन के हर क्षेत्र पर हावी है और बच्चे वर्चुअल क्लासेस में भाग लेते हैं। वर्चुअल स्कूलों की शुरुआत के साथ किताबें और कक्षाओं की अवधारणा पुराने दिनों से काफ़ी बदल गई है। On 17th May 2157, Marquis wrote in her diary about how Tommy found a real book. It was an old book that consisted of stories. Margie's grandfather once told her that his grandfather informed him that all the stories used to be printed on paper in those days. Both Margie and Tommy started turning the yellow and crumpled pages of the book to discover more about those days. They found it hilarious to read the book as the words stood fixed in one place instead of moving, contrary to what they had seen on a computer screen. From this, it is clear that in the future there will be telebooks only and that no hard copies of books will be available to read. Tommy explains that it is an utter waste to read a book and throw it away once completed. He feels that their television screen has a million books on it and could store plenty of more without throwing it away. 17 मई 2157 को मार्की ने अपनी डायरी में लिखा कि कैसे टॉमी को एक असली किताब मिली। यह एक पुरानी किताब थी जिसमें कहानियाँ थी। मार्की के दादा ने एक बार उसे बताया कि उन दिनों सभी कहानियाँ कागज़ पर छपी होती थी। मार्गी और टॉमी दोनों ने उन दिनों के बारे में और जानने के लिए किताब के पीले और मुड़े हुए पन्नों को पलटना शुरू किया। उन्हें किताब पढ़ना बहुत मज़ेदार लगा क्योंकि सब एक जगह पर स्थिर थे, न कि कंप्यूटर स्क्रीन पर क्योंकि उन्होंने देखा था। इससे स्पष्ट है कि भविष्य में केवल टेली बुक ही होंगी और किताबों की कोई हार्ड कॉपी पढ़ने के लिए उपलब्ध नहीं होगी। टॉमी ने कहा कि किताब पढ़ना और उसे पूरा पढ़ लेने के बाद फेंक देना पूरी तरह से बेकार है। उसे लगता है कि उसकी टेलीविज़न स्क्रीन पर लाखों किताबें हैं और उन्हें फेंके बिना उनमें और भी बहुत कुछ रखा जा सकता है। Soon they start reading about a school during ancient times when human beings were teachers. Although Margie hated the concept of schools, she was surprised to know actual people taught at school. This is because she has only seen robots teaching in her school. Moreover, she was not so fond of the school that was next to her bedroom, as she did not have any classmates, and the mechanical teacher always gave her loads of homework to do. जल्दी वे प्राचीन काल के स्कूल के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं जब मनुष्य शिक्षक थे। हालांकि मार्गी को स्कूलों के कंसेप्ट से नफरत थी, लेकिन वह यह जानकर हैरान थी कि स्कूल में वास्तविक लोग पढ़ाते थे। ऐसा इसलिए है क्योंकि वह अपने स्कूल में केवल रोबोट को पढ़ाते देखी थी। इसके अलावा वह अपने बेडरूम के बगल में स्थित स्कूल को इतना पसंद नहीं करती थी क्योंकि उसके पास क्लासमेट नहीं थे और मैकेनिकल टीचर हमेशा उसे ढेर सारा होमवर्क करने के लिए देते थे। Both Marky and Tommy study in a virtual classroom that includes electronic gadgets, robots, etc. Their daily lesson appears on a computer screen. It teaches them different subjects like math, science, etc. Once Margie's mother called the county inspector to fix the mechanical device on which Margie attends her virtual classes. He put the big black screen together again. However, the little girl was disappointed about the device getting fixed so soon. She knew she would again need to feed homework and test papers into it through a punch code. मार्की और टॉमी दोनों एक वर्चुअल क्लासरूम में पढ़ते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, रोबोट आदि शामिल हैं। उनका दैनिक पाठ कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देता है। यह उन्हें गणित, विज्ञान आदि जैसे विभिन्न विषय पढ़ाता है। एक बार मार्गी की मां ने काउंटी इंस्पेक्टर को उस यांत्रिक उपकरण को ठीक करने के लिए बुलाया जिस पर मार्गी अपनी वर्चुअल क्लासेस लेती है। उसने बड़ी काली स्क्रीन को फिर से जोड़ दिया। हालांकि छोटी लड़की डिवाइस की इतनी जल्दी ठीक हो जाने से निराश थी। वह जानती थी कि उसे फिर से पंचकोड के माध्यम से
होमवर्क और टेस्ट पेपर उसमें डालने होंगे। Further, as both the children continue reading the book, Margie's mother calls her to attend her classes. When Margie attends her school, the mechanical teacher teaches about fractions, but Margie's mind starts wondering about the fun her grandparents would have had while visiting a school in the olden days. Those days, a school used to be a special building, and all the kids of the same age studied together. She imagines how the kids from different areas in the neighborhood would come together and attend school merrily. Margie gets fascinated by the fun the children had century ago when they went to a real school. इसके अलावा जब दोनों बच्चे किताब पढ़ना जारी रखते हैं तो मार्गी की माँ ने उसे अपनी कक्षा में शामिल होने के लिए बुलाती है। जब मार्गी अपने स्कूल जाती है तो मैकेनिकल टीचर भिन्नों के बारे में पढ़ाता है, लेकिन मार्गी के मन में यह विचार आने लगता है कि पुराने दिनों में उसकी दादा दादी को स्कूल जाते समय कितना मज़ा आता होगा। उन दिनों एक स्कूल एक विशेष बिल्डिंग हुआ करती थी और एक ही उम्र के सभी बच्चे एक साथ पढ़ते थे। वो कल्पना करती है कि कैसे पड़ोस के अलग अलग इलाकों के बच्चे एक साथ आते होंगे और खुशी खुशी स्कूल जाते होंगे। मार्गी सदियों पहले बच्चों की मौज मस्ती से रोमांचित हो जाती है जब वे असली स्कूल जाते थे। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक फॉर मोर सच वीडियोज। बाय बाय।